Class 8 Civics Chapter number 1 The Indian Constitution. In this chapter we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. As the name suggests, this is a game that involves the player's feet. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. Each of these rules helps define the game and helps us to distinguish one game from another, as these are fundamental to the game. We can also call them constitutive rules of the game. Like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of society. In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus. And in modern countries, this consensus is usually available in written form. A written document in which we find such rules is called a constitution. भारतीय संविधान। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज्यादातर बच्चों ने इस खेल का नाम जरूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच में फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की ही तरह हर समाज के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, मूलभूत नियम होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच में फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। We have looked at the Indian Constitution in class 6 and 7 in our social and political life textbooks. Have you even wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? In this chapter, we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution. Each of these features is crucial to the working of democracy in India and some of these will be focused on different chapters in this book. कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हमने भारतीय संविधान की चर्चा की है। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया? क्या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय पर हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। In 1934, the Indian National Congress made a demand for a constituent assembly. During the Second World War, this assertion for an independent constituent assembly formed only of Indians gained momentum and this was conveyed in December 1946. The photo given here shows some members of Constituent Assembly. Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. Free to shape their destiny at last, after 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. You will read more about the work of Constituent Assembly later in the chapter. The photo alongside shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly. 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। यहाँ दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए
हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। यहाँ दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। टुडे most countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. Or another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. A country is usually made of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. A constitution serves as a set of rules and principles that all persons in the country can agree upon the basis of the way in which they want the country to be governed. This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। The country of Nepal has witnessed several people's struggle for democracy. There was a people's struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. In October 2002, King Gyanendra, citing the Maoist uprising in the countryside as his reason, began taking over different aspects of the government with the army's assistance. The king then finally took over as the head of government in Feb 2005. In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. This agreement signaled to a larger public an imminent return to democracy and peace. In 2006, this people's movement for democracy began gaining immense force. It repeatedly refused the small concessions that the king made, and finally in April 2006, the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. In 2008, Nepal became a democracy after abolishing the monarchy. Here given photos show scenes from the people's movement for democracy in 2006. नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। दिए गए चित्र में 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन का दृश्य दिया गया। Let us try to understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. Until recently, Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. The people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006, they finally succeeded in putting an end to the power of the king. The people had to write new constitution to establish Nepal as a democracy. The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be, and that they have
fought for। इन बातों का क्या मतलब है, ये समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई ऊपर की खबर में यह बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते आ रहे थे। इस संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। As in the game of football, in which a change in the constituent rules will change the game altogether, Nepal, by moving from monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. The caption alongside elaborate Nepal's struggle for the democracy. जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the constitution usually provides safeguards against this. This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated here in this cartoon. संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में होगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों के बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। यहाँ दिए गए चित्र में आप ये उदाहरण देख भी सकते हैं। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लग जाता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? श्रीमती राव जैसे ही क्लास में आती है। मैम, जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। मैडम राव अनिल से कह रही है, अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। आज तुम 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स दैट गार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, मेनी ऑफ दीज लॉज कंटेंट इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। क्लास 7 की बुक में एक स्टोरी दी गई है जिसमें एक दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि है, जिनके पिता साफ सफाई का काम करते हैं और ओम प्रकाश स्कूल में पढ़ता है। तो ओम प्रकाश को क्लास में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उसका जो टीचर है उससे गेम्स के पीरियड में पूरे स्कूल में झाड़ू वगैरह लगाने का काम करवाता है। एक बार ओम प्रकाश के पिता स्कूल एकदम से पहुंच जाते हैं। वे ओम प्रकाश को इस सिचुएशन में देखते हैं तो इस बात को लेकर वो टीचर को बहुत बुरा भला कहते हैं। साथ ही ये नसीहत भी देते हैं कि सभी को समान मानो। ऐसे नहीं चलता है कि आप किसी को किस तरह से डील करते हैं और किसी को किस तरह से डील करते हैं। आपके स्कूल में आने वाला हर छात्र समान होता है। You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on the ground of religion, race, caste, gender and place of birth. The right of equality is the one of fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता
व्यवस्था के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्लास 7 की बुक में ओम प्रकाश को दलित होने के कारण क्लास में भेदभाव का सामना करना पड़ा था। हमने वहाँ भी देखा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. The storyboard here demonstrates one such situation in the classroom. लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। यहाँ दी गई चित्रकथा में क्लास के अंदर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। गेम्स पीरियड शुरू होने वाला है। अब यहाँ पर गर्ल्स जो है वो कह रही हैं चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। बॉयज कहते हैं नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। टीचर्स इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। लड़कों की संख्या ज्यादा थी तो हाथ किसके ज्यादा खड़े होंगे? लड़कों के। अब यहाँ पर दूसरे चित्र में दिया गया हा हम जीत गए, हम जीत गए। गर्ल्स कह रही है ये तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज्यादा है। अब दो गर्ल्स आपस में बात कर रही हैं। हमें सीधा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जा सके। Such unhealthy situations can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interests. As the above storyboard illustrates, every society is prone to this tyranny of the majority. The Constitution usually contains rules that ensure the minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. Another reason why we have Constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. This can refer to one community dominating other, inter-community domination, or member of one community dominating others within the same community, intra-community domination. इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसा कि चित्रकथा से पता भी लगता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व इंटर कम्युनिटी कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं जिसे अंतर सामुदायिक यानी कि इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहा जाता है। The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interests, and the constitution helps us guard against this. This we can understand by seeing another storyboard. संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत ही तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं और संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझाने के लिए यहाँ एक चित्रकथा भी दी हुई है। शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा मनपसंद टीवी कार्यक्रम आ रहा है। मैं ऐसे दिखे बिना नहीं रह सकती, पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी। शबनम की माँ उससे पूछ रही है, शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? शबनम कहती है, मुझे ये टीवी कार्यक्रम देखना है लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तो तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। आखिरकार शबनम टीवी का सीरियल छोड़कर पढ़ाई करने बैठती है और यहाँ पर इसकी थिंक देखो क्या चल रही है। शबनम एग्जाम के टाइम में सोच रही है, परीक्षा दे रही है और सोच भी रही है, अच्छा हुआ कल मैंने टीवी नहीं देखा और इन्हीं लास्ट 2 चैप्टर्स में से इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. Swept by this emotion, they may not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all their interests. A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect
प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ही विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फिर फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे तौर पर तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों के अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। From the above discussion, you will understand that the Constitution plays a very important role in democratic society. इस चर्चा से आप समझ गए होंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। The Indian Constitution key features. By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle of the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had had very little role in making. A long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in the government. What remained to be done then was to work out the way in which democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not only by one person but a group of around 300 people who became members of Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution. भारतीय संविधान मुख्य लक्षण 20वीं शताब्दी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे खुद उन्होंने नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। यहाँ दिए गए चित्र में संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई। सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। इस चित्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। These members of Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct culture. Also, when the Constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of vast mass of people appeared dismal. All of these issues played on the mind of the members of Constituent Assembly as they drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role of people can play in choosing their representatives. संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक, न धर्म एक था और न ही संस्कृति एक जैसी थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगे। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया। देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जन प्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया है। यहाँ दिए गए चित्र में बाबा भीमराव आम्बेडकर हैं। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। नाउ की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज फेडरलिज्म। दिस refers to existence of more than one level of government in the country. We have governments at the state level and at the center. Panchayati Raj is the third tier of the government and you have read about in class 6 book and functioning of state government in class 7. Now this year we will read about central government. A vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital city of new country and making decisions for everyone
any state, it was important to have another level of government in the state so that decisions could be made for that particular area. While each state in India enjoys autonomy in exercising power on certain issues, subjects of national concern, require that all of these states follow the laws of the central government. The constitution contains lists that detail the issues that each tier of government can make laws on. In addition, the constitution also specifies where each tier of government can get the money from for the work that it does. Under federalism, the states are not merely agent of federal government but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these level of government. अब आगे भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयाम देखिए कौन कौन से हैं। इसमें से सबसे पहला है संघवाद, फेडरलिज्म। इसका मतलब है एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्रीय स्तर पर भी, जिनके बारे में हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 में हमने राज्य सरकार के काम को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश का फैसला न लेने लग जाए। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी हुई है जिसमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसों का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपने ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत में सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। Second key feature of Indian Constitution. First, we talk about the image given here. There are so many people are queued here for voting. When the Constituent Assembly adopted the principle of universal adult franchise, Shri A.K. Iyer, a member, remarked that this was done with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule, and in the full belief that the introduction of democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment and promote the well-being, the standard of life, the comfort and the decent living of the common man. Now we will go through second key feature of Indian Constitution, that is parliamentary form of government. The different tiers of the government that you just read about consist of representatives who are elected by people. The class 7th book begins with the story of Kanta, who was standing in the line to vote during an election. And Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. When they were making the Constitution, the members of Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. Also, every citizen of the country, irrespective of his or social background, can also contest in elections. These representatives are accountable to the people. You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में ही कांता की कहानी दी गई है जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हम इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे। The third key feature of Indian Constitution is separation of powers. According to the Constitution, there are three organs of government. These are the legislature, the executive, and the judiciary. The legislature refers to our elected representatives. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. The judiciary, of which you will read more in chapter 3 of this book, refers to the system of courts in this country. In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. Through this, each organ acts as a check on the other organs of the government, and this ensures the balance of power between all three. शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में हम इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। संविधान के किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। The fourth
key feature of Indian Constitution is fundamental right. The section on fundamental rights has often been referred to as the conscience of Indian Constitution. Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution thus guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individuals. Moreover, the various minority communities also expressed the need for the Constitution to include rights that would protect their groups. The Constitution therefore also guarantees the rights of minorities against the majority. As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold. The first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights, and secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principles of State Policy. This section was designed by the members of Constituent Assembly to ensure greater social and economic reform and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that helps reduce the poverty of the masses. मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशित तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। फिफ्थ की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सेक्युलरिज्म। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. We will read more about this in following chapters. You now understand the ways in which a country's history often determine the kind of constitution that a country adopts for itself. The constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. Just like the game of football, a change in constitutive rules will affect the game. Indian Constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. Often a major change in the constitution means a change in fundamental nature of the country. We saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy. The different features of Indian Constitution outlined above involved complicated ideas that are often not easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book, as well as in your higher classes, you will read more about these different features of Indian Constitution and understand more substantively what they mean. धर्म निरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम आगे के अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह देश के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं, वहाँ लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी बहुत होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनके अर्थों को जान पाएंगे। यहाँ दिए गए चित्र में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। एक में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं, दूसरे में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और तीसरे में काफी सारे मंत्री दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम दाएं से बाएं क्रम में देखें तो जयराम दास दौलतराम, राजकुमारी अमृत कौर, डॉक्टर जॉन मिथाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री जगजीवन राम आदि खड़े दिखाई दे रहे हैं। So reading of this chapter is completed. Soon we will meet in the exercise part of this chapter. Till then, be happy. This presentation brought to you by Indra Vijay sir.